Okay, madam. So this is your scenario, and you have to do a structured discussion. Okay. Hi, good evening. My name is Dr. Huma Khan. I'm ready for 32-year-old patient. Woman delivery presented with the uh, severe lower abdominal pain, hypotension, blood pressure 90/60, tachycardia. She is a post-cesarean नहीं, section patient. शी इज नॉर्मल डिलीवरी पेशेंट. ठीक है, अच्छा, पोस्ट अच्छा. सिजेरियन दूसरी है. ओके मैडम, ये ऊपर दिया हुआ था ना. हाँ. Okay, madam. Hi, my name is Dr. Huma. I will first of all greet the patient. I will introduce myself, and then I will take the demographic detail of the patient, including her name, education, her profession. Okay. Then coming towards, I will address her concerns, and then I will, ma'am, BP वगैरह यही है ना? यही है. Okay. और देखो, आप ऐसी पेशेंट को डायरेक्ट क्या करोगे? जी जी मैम, वही मैं आई हाँ. विल फर्स्ट ऑफ ऑल resuscitate the patient, and then I will start the focused history. Okay. In focused history, I will ask just about her complaint, that is pain. And I will ask about the pain score, severity, whether it is continuous, intermittent, dull, sharp, duration, since how long, any associated bleeding, any fever, any bladder bowel symptoms are associated rectal pain or heaviness. Then any, I will inquire about any collapsing episode before that. Then a brief history about her delivery, that she is recently delivered, where she delivered, in home or in periphery and hospital, or what was the duration of the labor, what were instruments used, any intrapartum complication. I will inquire her about any antenatal anemia or any other complication, any blood pressure or any problem. Then I will inquire her about the weight of the baby. Does baby is fine? Full term. Then I will inquire about her drug history, any anticoagulation medicines she is taking, any past medical history, including blood pressure, diabetes, or any other morbidity, any family history of bleeding, any allergy to any medicine, and any history of surgery, including hemorrhoids, and her socioeconomic status and support at home. I will ask her if she want to add something. Madam, history findings. You keep on continue it. I will provide you at the end. Okay. Okay, okay. Then, meanwhile, doing resuscitation, I will examine her, starting in the presence of the nurse, starting from her general physical examination, her BMI, blood vitals, that's already given. Then, pallor, dehydration status, thyroid, breast examination, abdominal examination to see any involution of the uterus, abdominal mass, stria, scar. Then coming towards the local examination, I will check her first to do her inspection. In inspection, I will do any vulval vaginal hematoma, any bruises, any scar, episiotomy. Then, if she is pain in the pain, I will counsel her, and I will, with the application of the local anesthetic, local any gel, I will try to do her vulvovaginal examination to rule out any hematoma, any tear. After that, I will, if possible, I will do her speculum examination to rule out any cervical or any RPOCs. Then, if possible, if she's not in too much pain, I will do bimanual examination. If not, I will not do. Then I will do her, after that I will do her digital rectal examination to see any mass or fluctuant swelling in the rectal area. And then I will ask, say her thanks and cover her. Madam, any examination findings? Wait. Your abdominal जो थी examination was deficient. ठीक है. You check for uterine size and contour. आपने Yes. देख लिया. Up, you palpate for the uterine fundus for in atony and subinvolution. Okay. You also check Patient. is it film or boogie. ठीक है. ये आपके words होने चाहिए. Then you also check for the suprapubic tenderness. Okay. Hematoma की finding आपको यहीं से मिलेगी. Infection की भी यहीं से मिलेगी. ठीक है. Then Mhm. डिस्टेंशन एंड रीबाउंड टेंडरनेस या ओवरऑल जो इसकी टेंडरनेस है वो सारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट
फाइंडिंग्स हैं जो कि आपने मिस की है। अगर आप नहीं बोलोगे एग्जाम में तो एग्जामिनर आपको नहीं बताएगी। Blood retention or any urine यस, retention, any. ठीक है। Yes. देन ऑन द वल्वा एंड वजाइनल एग्जामिनेशन, सबसे पहले यू आर इंस्पेक्टिंग द एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर एनी विजिबल स्वेलिंग, ब्रूजिंग, ब्लूइश डिस्कलरेशन। ये सब क्या कर रहे हैं? सजेस्टिंग हेमाटोमास। ठीक है। Yes, आप ma'am. इवन अपने वर्ड्स बोलते हो, आई विल लुक फॉर एनी विजिबल स्वेलिंग, ब्रूजिंग और ब्लूइश डिस्कलरेशन दैट सजेस्ट हेमाटोमा। इसका मतलब एग्जामिनर इतनी खुश हो जाएगी कि आप डायरेक्ट हेमाटोमा जब एग्जामिन कर रहे हो आप देखते हो कि कहीं इसको हेमाटोमा बना तो नहीं है। ठीक है। और हेमाटोमा जरूरी नहीं है आपको किसी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के बाद ही मिले, विदाउट Ac- इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी भी हेमाटोमा फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है। Then you palpate the perineum gently and you check or palpate for tenderness, any tender swelling that can indicate hematomas as well. तो आपके words ये होने चाहिए. You check the perineum and the pad for either it is soaked or ongoing blood loss is present. You inspect the vaginal walls for any lacerations, active bleeding or hematomas present. ठीक है। Then you inspect the cervix and high vaginal inspection with perispeciculum examination. You are also going to check the vaginal discharge, any present, its amount, order and color, and presence of any clots. इस तरह से, and for assessment of retained products, you do bimanual examination. Okay. Either the Okay. os is open, any tissues felt inside. हो सकता है ये रिटेन्ड प्लेसेंटा की पेशेंट है इसीलिए इतना उस कंडीशन में है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आपको Mm. पीपीएच के बाद अपनी डायग्नोसिस बनानी है। गॉट इट। Okay, ma'am. And So I any. will do other systemic examination as per routine, including her cardiovascular, respiratory and neurological examinations. ये आपने बिल्कुल नहीं बोलना है, टच देना है। ठीक है। Okay, ma'am. गुड। और डीवीटी को तो बिल्कुल मिस नहीं करना। ऐसी पेशेंट जो शॉक में है, हो सकता है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की है। सही है। यू ऑलवेज Yeah. चेक इन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में ही, अगर रूल ऑफ 7 को देखा जाए तो लोअर लिम्स आप डीवीटी के लिए वही उसी में देख लो, जीपीई में देख लो। अगर आप अलग से कर रहे हो तो भी ठीक है, सारी एग्जामिनेशन के बाद आप अलग से एंड में बता दो कि मैं देखूंगी कि एनी डायलेटेड वेन्स हैं या कोई वो तो नहीं है, Okay, ma'am. प्रोमिनेंट वेन्स। गुड। Okay, ma'am. So, ma'am, adding findings. Yes, now I'm going to provide your findings. ये मैंने डीडीज की एक टेबल बना दी है, कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप लोगों को मैं इमेजेस प्रोवाइड कर दूंगी, जो बाकी लोग हैं अगर वो लेना चाहें इट्स ओके। अच्छा, हमारे पास अब हमारे हेमाटोमा की फाइंडिंग्स मैं आपको बताती हूँ, वो आपको डायरेक्ट हेमाटोमा की फाइंडिंग बताएगी। पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ सवेयर लोकल पेन। ठीक है। लोकली एब्डोमेन में भी वो बता सकती है, लोकली पेरिनियम में भी बता सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द हेमाटोमा। ओके। Okay. शी इज ऑल्सो फीलिंग द सेंस ऑफ प्रेशर ऑन रेक्टल एरिया। ओके। Okay. एंड पेशेंट इज, जो वाइटली हम बता चुके हैं कि अनस्टेबल है, Nine. हाइपोटेंसिव है। सही। जब आपकी Okay. एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स हैं, शी विल प्रोवाइड यू देयर इज अ टेंस टेंडर स्वेलिंग। हो सकता है वो आपको साइज भी बता दे। सही, 5 सेंटीमीटर, मोर देन 5 सेंटीमीटर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने साइज उससे लेना है। एंड दैट इज स्लाइटली ब्लूइश इन डिस्कलरेशन एंड पॉसिबली मिनिमल ब्लीडिंग। एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा ये जो रिकॉल में था, डायरेक्टली वो आपको पिक्चर दिखाएगी। ठीक है, मैं आपको वो पिक्चर दिखा देती हूँ। वो डायरेक्टली आपको इमेज दिखाती है, कहती है ये है। सही है। मैं तो कितना साइज लग रहा है आपको, बड़ा है ना? बड़ा मोर है। देन 5? हाँ। जी जी। ठीक है। और वो ओके। आपको बोलती भी है कि अभी आपको कितना लग रहा है, कितना आप सिर्फ साइज के ऊपर पूछते हो तो इट इज मोर देन 5 एंड देन जाहिर है, अब ये तो एक पिक्चर है, आपने इसकी बाकी पूछनी है फाइंडिंग्स के, इज इट इंक्रीजिंग इन साइज और ये वहीं पे रुक गई है, ये सारी फाइंडिंग्स आपने लेनी है उससे। ठीक है। ओके मैम। देन वो कहती है व्हाट इज इट। This is Madam vulvovaginal hematoma वेरी गुड। of सो almost centimeter ओके। and, on the left side of the labia, left एंड labia. इट इज विच कलर? Um, Bluish color, ब्लूइश pinkish blue. डिस्कलरेशन।
ठीक है। bluish हेमाटोमा tissue. मोस्टली ब्लूइश डिस्कलरेशंस में होती हैं एंड Yes. टेंडर होती हैं ऑन टच करने पे, ठीक है, स्लाइटली टेंडर, उसके इर्द गिर्द सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। Mhm. ओके, सो वो Okay. बोलेंगे नाउ Investigation. इन्वेस्टिगेशंस, यस, मैं आ रही हूँ इन्वेस्टिगेशंस पे थोड़ा वेट। Yeah, ओके। madam. Madam, coming towards the investigation, I will ask for the baseline investigation, including full blood count, hemoglobin gram per deciliter cube, total leukocyte count, platelet count, blood group, cross match, coagulation profile. And madam, want renal and liver function test. I want serum lactate and VBGs. Serum lactate, so please serum lactate. I was if madam, I want urine analysis, urine culture, एंड मैडम ब्लड कल्चर। मैडम मुझे लगता है ब्लड कल्चर नहीं मांगना चाहिए। अगर हम देखो सेप्सिस वगैरह सस्पेक्ट कर रहे हैं तो डिपेंड्स अपॉन द फीवर सिनेरियो, है इसमें ना? आप ना मांगो। अदर फीवर नहीं। इन्वेस्टिग हाँ, ठीक है। मैडम आई वांट अल्ट्रासाउंड, pelvic ultrasound showing any intrauterine retained products of conception, any the size of this and on perineal view size of this hematoma and अच्छा, एक बात बताओ, जी पेल्विक तो मांग रही हो, इस हेमाटोमा की अल्ट्रासाउंड हो सकती है, ये जो नीचे है? पेरिनियल मैडम थोड़ा सा प्रॉब्लम टेंडर होगा तो मुश्किल। हो सकती है, ठीक है, अच्छा अल्ट्रासाउंड अच्छा। इज पॉसिबल, उसकी फाइंडिंग्स है। ओके मैडम। ओके सो मैडम कैन यू प्रोवाइड मी फाइंडिंग। नो, व्हाट यू वांट टू चेक ऑन अल्ट्रासाउंड, एक हीमोग्लोबिन। नहीं, एक अच्छा मिनट ओके। आओ, मैं जरा इसको ले आऊं, ये जो ये वाला था। ऑन अल्ट्रासाउंड। ये हिस्ट्री चल रही है, जी मैडम ये ऊपर है हिस्ट्री है। एक मिनट, मैंने वो यहीं पे पिक्चर। नोट किया है, नहीं नहीं नोट किया है मैंने, जस्ट लेट वेट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्या मांगनी है, क्या फाइंडिंग्स अल्ट्रासाउंड में आपको चाहिए। अल्ट्रासाउंड नहीं, ये तो डीडीज है। सुप्रालेवेटर की ये है सबर, मैं जरा इस पे आती हूँ, ये है ये हाँ जी मैडम ये है। इंफ्रालेवेटर है ओके। आपको। ओके इंफ्रालेवेटर होगा ना मैडम, ये जो वल्वल हाँ, वल्वो होगा। यस। ठीक। वेदर इट इज सुप्रा लिवेटर और इंफ्रा लिवेटर। हाँ मैडम इंफ्रा लिवेटर मतलब अल्ट्रासाउंड सीटी एमआरआई और एंजियोग्राफी तीनों पे कैसे नजर आएगा ये। हाँ ठीक है। सबसे पहले हम सुप्रा लिवेटर अगर हो, जिस तरह वो ब्रॉड लिगामेंट और इन चीजों में हो जाता है तो वो हाइपो इकोइक above the elevator ni uterine displacement, उसमें यूट्राइन abdominal एग्जामिनेशन पे डिस्प्लेसमेंट होगी। और मैम फिर अगर इंफ्रा आप लिवेटर आप देखेंगे। आप अपने देखो इंफ्रालेवेटर, आपका जी जी। टास्क इंफ्रालेवेटर। जी जी बिल्कुल। हाइपोइकोइक वल्वल पेरिनियल और इसक्यो रेक्टल फोसा मैम, इट विल लोकेटेड इन द वल्वल पेरिनियल एंड इसक्यो रेक्टल फोसा कहीं ऑन पे द भी, अल्ट्रासाउंड एंड और इट इज नजर कैसे, हाइपोइक हाइपोइकोइक, ये जो है ना, ये हाइपोइकोइक। वर्ड नहीं बोलना है। आप एग्जामिनर से बोलते हो आई वांट टू नो इज द मास और दिस लीजन इज इट शोइंग हाइपोइकोइक लीजन और ऑन अल्ट्रासाउंड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैडम हाइपोइकोइक किसको कहते हैं, जो ब्लैक होता है ज्यादा या जो व्हाइट होता है ज्यादा। बीच में होते हैं, इको लाइक इक देखो, ब्लैक जो है वो फ्लूइड फ्लूइड को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, और जी। ब्लैडर इज हाइपर इक्विक, ठीक, उससे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा उसकी ब्लैकनेस से थोड़ा सा कम अगर आ जाता है, यानी फ्लूइड तो है लेकिन ब्लड है, तो ये इट इज हाइपोइक्विक। और मैडम अगर आरपीओसी सब अक्सर एमसीक्यू आया करता था, वो हाइपर होती हैं या हाइपो होती हैं। वो मिक्स होते हैं एक तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस, इस तरह के मिक्स से उसमें फाइंडिंग्स आ सकते हैं, ठीक है, और आरपीओसीज बेसिकली जी। खुद हाइपोइक्विक होते हैं, ओके क्लॉट्स मैम। वगैरह हाइपोइक्विक होते हैं।
ओके मैम, यहाँ पे तो CT MRI की जरूरत नहीं पड़नी ना, क्योंकि ये क्यों तो नहीं एक वल्वा पढ़नी? वजाइनल सिंपल। चुप करो, पढ़नी है। अच्छा मैम। On CT, it is hyperdense, perineal, scorectal, below the levator ani. On हम्म। MRI, it is acute, hypointense. Subacute is hyperintense. Acute is hypointense, and हम्म। subacute is hyper. Then हम्म। on angio, extravasation from the internal pudendal arteries. Because madam, ये वल्वा और पेरिनियम को पुडेंडल आर्टरी प्रोवाइड करती है ना, हम्म। तो इसमें पुडेंडल आर्टरी की एक्स्ट्रावेसेशन होगी जब हम अब एंजियो हमने करते हैं। क्यों ये सारे रेडियोग्राफ्स पढ़े, इसको जरा गौर से सुनो। आप जब हेमाटोमा सस्पेक्ट कर रहे होते हो, आपके पास सबसे पहले तो इंफ्रालेवेटर की क्लिनिकल डायग्नोसिस है, ठीक है। फिर भी आप उसकी ऑनगोइंग हेमोरेज, और अगर पेशेंट का आप देखना चाहते हो कि मैं इसको कंजर्वेटिव अप्रोच पे रखूं ना रखूं, अदर मोडेलिटीज लाइक सीटी, एमआरआई एंड एंजियोग्राफी, ये सारे आप यूज कर सकते हो। एग्जाम में आप इन सब के नाम लोगे, ठीक है। ये क्यों लोगे? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपकी डायग्नोस्टिक्स के लिए और आपकी मैनेजमेंट अप्रोच के लिए। सो अगर वो पूछती है व्हाट आर द स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस फॉर द हेमाटोमा, आप इन चारों के नाम लोगे, तीनों की, चारों की, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन आपके पास हुई। लेकिन मैडम अब वो कहती है कि क्यों तुमने इतने ज्यादा महंगे टेस्ट इस पेशेंट को लिख के दे दिए हैं। नहीं बोलो, मतलब मैं इन्हें इस पेशेंट को लिख के नहीं दिए। फॉर द डेफिनेट डायग्नोसिस, फॉर द डेफिनेट मैनेजमेंट प्लान, आई कैन यूज द अदर मोडेलिटीज। अगर मुझे अल्ट्रासाउंड पे सही समझ नहीं आ रहा, मुझे सही डायग्नोसिस नहीं मिल रही, तो मैं बाकी मोडेलिटीज यूज करूंगी, ठीक है। ओ मैडम, ओके। ओके। अगर नहीं समझ आ रहा अल्ट्रासाउंड पे सही हाँ। कॉम्प्लेक्स। अच्छा ठीक हाँ, है। दीज आर द डायग्नोस्टिक पॉइंट्स ऑफ द वल्वल हेमाटोमा जो वो आपको एग्जामिनर प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ओके मैम। She will provide on clinical presentation that yes, the patient had abrupt onset and severe pain. Okay, and she is also feeling a pain or swelling over her perineal area or the rectal area. Usually it is unilateral. सही, ये क्ल्यू है। The mass is also जी। visible, यानी जब आप उसकी examination findings logi, she will say yes, there is a palpable mass, usually bluish or purplish in color, and you have to inquire regarding the size of the mass. Then you inquire that, madam, is there any tenderness over the mass? Is that mass fluctuating or kind of fluctuant or swelling? यानी देखो, एक होता है फिक्स्ड मास होता है, सही है, और एक होता है फ्लक्चुएटिंग मास होता है। फिक्स्ड मास ज्यादातर मैलिग्नेंसीज और ऐसी कंडीशंस, एक्यूट कंडीशंस में फिक्स्ड मासेस नहीं होती। एप्सिस और ये हेमाटोमा, दे आर यूजुअली फ्लक्चुएंट। फिर आप आते हो कि स्कोरिंग करते हो। ऑफ कोर्स पेन को स्कोरिंग करने के बाद आप, वो बताएगी आपको देयर इज पेन इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। साइंस ऑफ शॉक आपको देगी। यस, यू मिस्ड डिफिकल्टी विद यूरिनेशन और डेफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आपने हिस्ट्री में उससे पूछना है हैज शी पास्ड यूरिन और इज देयर एनी डिफिकल्टी और रिटेंशन ऑफ द यूरिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है वल्वल हेमाटोमा का, ये आपने जरूर पूछना है। फिर उसके बाद यूजुअली ये किस चीज के बाद आपको वही इवेंट्स के बारे में बताएगी जो हमारे उसमें रिकॉल आया था, उसमें पेशेंट जो है मिडवाइफ लेड यूनिट में डिलीवर हुई थी, ठीक है। सो ना इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी थी ना कुछ, बट शी हैड हेमाटोमा। ओके। अब जो है उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स हो चुकी हैं, वही है कि आप देखते हो कि टेंडर फिल्म है, फ्लक्चुएटिंग है, ये लेबिया, पेरिनियम, इवन बटक्स तक बहुत बड़े हेमाटोमास हो तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं। अब एक्सटेंशन के जो है वो जरूरी नहीं है ऊपर से आपको नजर आए, ये डीप इनसाइड भी हो सकते हैं। उन्हीं के लिए आपको सीटी, एमआरआई और एंजियोग्राफी आप करा रहे होते हो कि पेशेंट को आप स्टेबलाइज कर सको। आप उसकी ऑनगोइंग लेसरेशंस, ब्लीडिंग, इनके लिए भी आप साथ में एवेलुएट करते हो। यूजुअली वो आपको कोई खास फाइंडिंग प्रोवाइड नहीं करेगी कि कोई और लेसरेशंस है जो है। आप इमेजिंग पे आते हो, जो फाइंडिंग्स वो आपको प्रोवाइड करेगी, उसमें आपने जरूर जरूर हेमाटोमा और एब्सेस के बीच में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड आपका फर्स्ट मोडेलिटी होगा, देन सीटी एंड एमआरआई। फाइंडिंग्स हमने पढ़ ली हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट क्लूज जो हमने पढ़ी वो ऊपर आपको प्रोवाइड की गई हैं, यू हैव टू रिमेम्बर देम। अगर आप एग्जामिनर से पूछोगे, आप इसी तरह पूछोगे कि मैडम एनी काइंड ऑफ हाइपर इकोइक और हाइपो इकोइक फाइंडिंग्स इन दिस मास ऑन अल्ट्रासाउंड, तो फिर वो आपको बताएगी।
So now manage your patient. मैडम जब वो अल्ट्रासाउंड पे फाइंडिंग बता देगी तो हम फिर सीटी एमआरआई की तरफ क्यों जाएंगे? तब नहीं वो तो फिर जाएंगे। हमें देखो, पकड़ लेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल वो तुम्हें बोल रही है कि द हेमाटोमा इज एक्सटेंडिंग, अभी आगे आएगी यही बात, इसीलिए मैंने कहा कि ये आपने बताने हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट जब रिकॉल का आएगा तब मैं उसमें ये सारा क्लेरिफाई कर दूंगी, थोड़ा सा सब्र करो। Madam, I will offer her support. I will counsel her about her diagnosis. After emergency situation, I will offer her support. I will involve multidisciplinary team. I will counsel her about her diagnosis. I will discuss the management options, and I will empower her in taking the decision. Okay. Now, madam, coming towards the management, as her hematoma is more than 5 centimeter. So here I cannot apply. I will tell her I cannot apply the conservative stage. I will first of all give her analgesia with the antibiotic cover, and I will do but through the surgery by primary closure, and I will do compression dressing for 12 to 24 hours. हुमैरा, हुमा, जी मैडम. keep on seeing the slides as well. ओके ओके मैम. मैम ये कॉल फॉर हेल्प और की सब तो स्टार्ट में हो गया था ना फिर रिससिटेशन में. फिर भी यार, फिर भी आप उसको अच्छा सा Okay. मैनेज कर रहे हो तो करो उसको। Okay, so call for help. I'll mobilize the our multidisciplinary team, including obstetrician, anesthetist, hematology, intervention radiologist, if available. Secure airway, breathing, circulation, immediate stabilization is vital. So provide high flow oxygen, 10 to 15 liters per minute by mask, and establish the two large IV bore cannulas of 14 size, and send the investigation 20 ml of the blood, full blood count, clotting profile, renal function. मैडम ये भिजवा दिए थे ग्रुप ठीक है। एंड क्रॉस मैच. ओके. मैम ये देन आई सुप्रा विल एलिवेटर स्टार्ट. की नहीं है, इंफ्रा एलिवेटर तो ये तो बहुत एडवांस मैडम है ना रिससिटेशन। क्या? देखिए रिससिटेशन में ये सारा कुछ आता है. मैं कहूँगी इमीडिएट रिससिटेशन के बाद फिर जब वो रिससिटेट हो जाएगी तो मैडम मैं उसे बताऊंगी कि तुम्हारा जो मैनेजमेंट है वो सर्जरी करनी होगी. मोर देन 5 सेंटीमीटर है आपका ये हिमाटोमा, तो सुप्रा उसके लिए एलिवेटर में प्राइमरी. ब्लीडिंग होती है आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब उसमें हमें कंसील्ड टेम्परेचर हो रहा होता है तो उसमें हम सिर्फ ये मेजर नहीं करेंगे। इंफ्रा में तो वो लोकलाइज सी ब्लीडिंग होती है, अगर एक्सटेंड नहीं कर रही होती है तो हम इतना इतना हाई प्रिकॉशंस लेने की क्या जरूरत है इसमें? नहीं, अब इसका आंसर ये है हुमैरा कि ये एग्जाम का रिकॉल था और एग्जैक्ट मेरे दिन का रिकॉल था। इसमें पेशेंट इसी तरह से हाइपोटेंसिव है, और ये सिनेरियो में मैडम ने शुरू में प्रोवाइड कर दिया है कि उसका बीपी लो है, वो जो है एक शॉक की स्टेट में है। तो फिर मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये गैर जरूरी है ये सारे रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स? और यही इमेज उसमें दिखाई। नहीं मैडम, गैर जरूरी तो नहीं है, लेकिन उसकी इनिशियल रेसिसिटेशन हो चुकी ना, तो फिर उसको हम बस इवेकुएट करना है उसका लोकल। तो जब आप मैनेजमेंट बताते हो ना, तब आप जरूर बताते हो कि रजिस्ट्रेशन क्या है। और मैं रजिस्ट्रेशन, उसने शुरू में तो ये नहीं बताया कि आईवी लाइन करूंगी सारे लैब्स, उसने तो सिर्फ ये बोला कि साइड बाय साइड आई विल ऑफर हर रजिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड देन आई विल टेक हर फोकस्ड हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। ठीक है। तो अब यहाँ पे आके उसको ये बताना बहुत लाजमी है कि रजिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या है। ओके ओके। मैडम. हम्म। ओके. देन आई विल क्लोज. ओके मैडम, अभी तो ये बड़ा है ना, सो के मैं नीचे वाला पढ़ूंगी. मैडम ऊपर वाला तो स्टेबल और लेस देन 5 सेंटीमीटर के लिए है. मैडम मैं पढ़ लूं मैं ऊपर वाला भी. इफ पढ़ लो। हेमोडायनामिक. हाँ। If patient is hemodynamically stable, non-expanding hematoma, and reliable on ongoing monitoring is less than 5 centimeter in the size, then essential actions: close clinical observation, vital signs, serial hemoglobin, analgesia, broad spectrum antibiotics due to the risk of secondary infection, in urinary catheterization, if retention or strict output monitoring is required. Then, if hemodynamically unstable, expanding hematoma, ongoing drop in the hemoglobin and hematocrit, or मेरा failure of हुमा, conservative measures. जी इट मैडम. इट वुड बी मोर बेटर कि आप इसको इस तरह से अप्रोच करो कि मैडम आई हैव टू मैनेजमेंट ऑप्शंस, दैट इज द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। ओके, but the जी. candidate for the conservative management is those that is having less than 5 centimeter size hematoma and that is non-expanding, the patient is stable.
अब मैं तुम्हें बताऊं, जो रियल टाइम में उसने मुझे कोई फाइंडिंग नहीं दी कि ये कितने सेंटीमीटर का है, ये तो हम खुद से इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। सो जी जी। और उसके बाद फिर आप उसको बताते हो द अदर ऑप्शन विच शी हैव इज द सर्जिकल मैनेजमेंट। इट विल बी ऑफर्ड टू द पेशेंट हु इज हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल, द हेमाटोमा इज एक्सपेंडिंग एंड देयर इज ऑनगोइंग ड्रॉप इन हीमोग्लोबिन। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इतनी तेजी से ना बताओ कि सुनने वाले को समझ में ना आए कि आप क्या बता रहे हो, ठीक है। ओके वर्ड्स वर्ड्स का एक जादू होता है, जुमलाबाजी होती है। सो व्हाट ओके। सर्जिकल ऑप्शंस शी हैव? Surgical drainage and evacuation, interventional radiology, major vessel ligation, तीन सर्जिकल ऑप्शंस है। नाउ रीड देम एंड एक्सप्लेन दैम। In surgical drainage and evacuation, aim of the vaginal approach, if feasible, laparotomy may be needed for inaccessible or retroperitoneal hematomas. Identify and control the bleeding source and drain placement and cavity lavage as हम्म needed. हम्म Then is interventional radiology. Then after embolization, usually internal iliac artery or its branches, we will embolize in cases where surgery fails and when access to the surgical control is limited or reduced risk of rebleeding. हम्म Then major vessel ligation, internal iliac artery or other pelvic vessels if both standard surgery and embolization are unsuccessful or unavailable. गुड। तो ये ऑप्शंस आप इवन हेमाटोमास के लिए किसी भी चाहे साइज का हो वो आप उसको ऑफर कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसका हेमाटोमा है और वो मुझे बिल्कुल कह देती है कि लेस देन 5 सेंटीमीटर है, फिर भी मैं कंजर्वेटिव अप्रोच पे नहीं जाना चाहती, ठीक है। तो देन यू हैव टू ऑफर हर सर्जिकल इंटरवेंशंस, ठीक है। Yes, सो incision यू and drainage. मस्ट, यस। सो व्हाट आर द पोस्ट मैनेजमेंट एडिशनल Yes, मेजर्स व्हिच यू post टेक? I will document and shift her. I will madam उस D's भी करेंगे ना. Okay, I will her on the antibiotics, analgesics, and then drain placement. Because drain placement was occurred, so massive transfusion protocol apply event of major. मैडम आपने हटा दिया है. हाँ हाँ डारी। पहले वो कर ले फिर मैं ये एंड में डी कर लेती हूँ. आपने कहा था एंड में डीज कर लेना. तो मैसिव ओके मैम. देन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग आई विल डू पोस्ट. मैडम इसका वीटी प्रोफाइलेक्सिस करेंगे. कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, वॉच फॉर इन्फेक्शन, हिमाटोमा resolution, repeat imaging as indicated whether it is progressing or not. Madam, post acute care, then I will do DVT prophylaxis, repeat images, sportive care. I will discharge her on the red flag signs. I will debrief, I will document, debrief, and I will do incident reporting, case discussion, and case discussion and duty of drills and to avoid in the future such things, and duty of condor. On the follow up, I will in the follow up visits I will see for any infection, any recurrence, any blood loss, and also um, I will check her hemoglobin. Any drop the hemoglobin, I will address such concerns of the heart. Thank you so ओके। much. सो पेशेंट आपकी जो है वो पोस्टमार्टम में है, ऑल्सो अप्लाई ABCDEF। Okay, madam. अप्लाई। Okay. Physical, active physical recovery, breastfeeding. C for contraception, I will tell her. C, D, I will D for डिस्चार्ज। discharge. E for madam, E भूल गए. VTE रिस्क असेसमेंट। Yes, man. Assessment. E, F, and S for follow up. गुड। A, B, C, E, F. सो ये 70s क्लिनिकल इंसिडेंट्स में आपने नहीं बोलना है और जी ma'am. पोस्टमार्टम में ABCDEF नहीं, ठीक है। Okay, ma'am. ये दो आपके वो हो गए, टिप्स हो गए। अब ये जो पूरा इतना हम लोगों ने इस पे मगजमारी की, आपको पता है ये आपके रिकॉल का जस्ट हाफ था, ठीक है। अब आगे एग्जामिनर आपको चैलेंजिंग सिचुएशन में लाती है, इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा बहुत कम कम बोला करो ताकि आप उसकी जो चैलेंजेस है उनको क्रॉस कर सकें। अब अगर हेमाटोमा आता है तो सिर्फ एक नहीं आता, दो दो को मिला के। अब अगर कोई पॉक्यू ग्रेड है, एक नहीं है, चार चार ग्रेड है। तो रिकॉल में ये है कि आप जब यहाँ तक पहुंचते तो पेशेंट, डॉक्टर कहती है कि पेशेंट स्टिल नॉट इम्प्रूविंग। ओके, सो नाउ व्हाट विल यू डू?
जब मैंने आप जैसे पोस्ट रिकवरी में आप जैसे बोल रहे थे ना, आई विल मॉनिटर द पेशेंट फॉर द रिकवरी, वहां पे Yes, ma'am. जाके एग्जामिनर के ये वर्ड्स थे, पेशेंट इज नॉट इम्प्रूविंग, व्हाट विल यू डू? तब आपका आंसर ये होना चाहिए कि नाउ आई विल एस्केलेट द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जब एस्केलेट करते हो उसमें दो चीजें शामिल होती हैं, यानी कि आप अपनी जो असेसमेंट थी उसको सारे का सारा दोबारा से करते हो, ठीक है, जिसमें आपकी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंड हो जाते हैं कि मैंने कहीं ये मिस नहीं किया, वो मिस नहीं किया, या कोई ऐसी चीज जो मैंने अब तक डायग्नोस, क्योंकि अगर आप उसको डायग्नोस कर चुके होते तो वो मैनेज हो चुकी होती, इट मीन्स देयर इज स्टिल समथिंग मिसिंग। तब आप दोबारा कहते हो कि मैडम, आई विल एस्केलेट माय मैनेजमेंट एंड दैट इंक्लूड्स वही हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन। आई विल एक्सपेंड द इन्वेस्टिगेशंस इन द फॉर्म ऑफ सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी। आई विल फर्दर चेक, जब एक हेमाटोमा बना है तो 100% या 50% चांसेस है कि एक और हेमाटोमा जो है उसके एब्डोमेन में या कहीं और बना हुआ है, ठीक है, इट मीन्स पेशेंट इज प्रोन फॉर अनदर हेमाटोमा। तो फिर उसके बाद वो कहती है अब क्या, इवन आप यकीन करो, ट्रस्ट मी, दोबारा से जब हिस्ट्री ली, दोबारा से एग्जामिनेशन, और दोबारा से जब इन्वेस्टिगेशंस पे आए, तब जाके उसने सुप्रालिवेटर हेमाटोमा के फाइंडिंग्स बताए। अब आपको कितना स्पीड अप होना पड़ेगा कि आप इन दो रिकॉल्स को एक ही 10 मिनट में कवर करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस बोलो सब, Yes, एटलीस्ट। ma'am. ओके, Yes. Yes, ma'am. ओके गुड। सो अब जो है उसका सेकंड जो है फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसमें वो आपको सारी की सारी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स सुप्रालेवेटर हेमाटोमा की देती है, जिसमें जो है वो सारी है वो शिफ्टिंग ऑफ द यूट्रस और टिल्टिंग ऑफ द यूट्रस टुवर्ड्स वन साइड, पहली फाइंडिंग वो ये देती है आपको। फिर उसके बाद जो है आपको अल्ट्रासाउंड पे भी देती है, कंफर्म कर देती है कि यस द हेमाटो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हेमाटोमा that has tilted the uterus towards the left side, ठीक है। सीटी और एमआरआई का हमने नाम लिया था, एंजियोग्राफी का, बट शी डिडंट प्रोवाइड एनी फाइंडिंग्स, तो इट मींस बस ये उनकी की है, खाली एक दो वर्ड्स आपने बोलने होते हैं। नाउ मैनेज योर पेशेंट फॉर द सुप्रालेवेटर हेमाटोमा अनम। वेट, मैं स्लाइड भी लाती हूँ Yes, फिर। ma'am. हाँ, Elevator ब्रॉड लिगामेंट में होता है, यूट्रस शिफ्ट। पहले आप उसकी डायग्नोसिस को पढ़ लो कि सुप्रालेवेटर हेमाटोमा कैसे डायग्नोज होता है, ठीक है। हम्म, नाउ मैनेज योर पेशेंट। Okay. First of all, I will do immediate assessment and resuscitation of the patient. अब ये I will call पहले for रेस्ट्रेट हो urgent. चुकी थी, ठीक है, आप बोलोगे कि आई Okay, विल ma'am. रिकंसीडर द रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स, ईदर दे आर इफेक्टिव और नॉट, कि जो मेजर्स मैं उसको दे रही थी उनका इस पे फर्क पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा, ठीक है। कोलाइड्स Okay. हैं, क्रिस्टलॉइड्स हैं, ऑक्सीजन है, जो भी आप उसको दे रहे हो वो सही तरीके से सही उसमें मिल रही है, या वो कहीं से ब्लॉक हो चुकी है, या उसका कैनुला ब्लॉक्ड है, या उसका कैथेटर ब्लॉक है, ये आपकी रीअसेसमेंट में आ जाती है, ठीक है। Okay. ओके, Okay. अब सेकंड आपका फेज है, आप उसमें अब जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है आप उनकी ओपिनियन लेते हो कि पेशेंट इज स्टिल नॉट Okay. यू रीटेक देयर ओपिनियन, ठीक है। एंड नाउ ऑन गोइंग Okay. मैनेजमेंट की तरफ, डेफिनेट मैनेजमेंट। Okay. First, I will go towards after the initial resuscitation, I will go towards the definitive management. If I will do conservative management if my नहीं, इसकी patient नहीं करोगी, remains. ठीक है, इसकी नहीं करोगी, देखो Okay. ये तो नोट्स है As ना, the patient is उसमें हमें, unstable and हाँ, does not recover with the initial या resuscitation, so I will go for the active or surgical or interventional management. Indications are hemodynamic instability, which is present in my patient, expanding hematoma on repeat imaging and examination, declining hemoglobin required transfusion or failing conservative therapy. Then I have different options: surgical drainage and evacuation, interventional radiology, and major pelvic vessel ligation.
First is the surgical drainage and evacuation, vaginal approach if the hematoma is accessible, otherwise laparotomy for inaccessible retroperitoneal collections, secure bleeding vessels, drain cavity, lavage, pack as needed. Then, if does not recover with this, interventional radiology, selective arterial embolization for persistent bleeding or surgically inaccessible location. For this, I need interventional radiologist and expertise are required, and it's very expensive. And the third is the major pelvic vessel ligation. It is the internal iliac or branches if both surgical and endovascular options fail or are not available. Adjuvant measures, massive transfusion protocol for ongoing major hemorrhage, prophylactic antibiotic in all cases, especially with surgical intervention or drainage, continuous assessment for recurrence infection or secondary complication, repeat imaging as needed. Psychological support, very important, and HTU and ICU admission if clinical status warrants. Thromboprophylaxis after hemorrhage risk is controlled. Good. Summary of the supraelevator hematoma management. First, I will diagnosis clinical suspicion, urgent imaging, CT or MRI once stable. After for stabilization, I will do ABC, resuscitation, IV fluids or blood, active major blood hemorrhage protocol if needed. Definitive therapy if the hematoma is small and stable, conservative, or surgery or embolization if ongoing blood loss or unstable. Infection control, broad spectrum antibiotic, Hmm. and then I will debrief, Hmm. doc, Document. document. Hmm. I will debrief, document, discharge, edetics, discussion, drills, and duty of candor accordingly. And ABCDEF. And ABCDEF. वो क्या है बताओ ना उस एग्जामिनर को ABCDEF नहीं पता क्यों? Ma'am, active resuscitation, Recovery. breastfeeding, active recovery, breastfeeding, counsel the patient regarding breastfeeding, contraception and family planning, Hmm. and then I will discharge the patient or Properly documented discharge sheet I will provide her. I will give her follow updates. I will do VT risk assessment at the same time. ठीक? yes, ma'am. So very Yes, good. ma'am. That was all regarding the hematoma. अब मैं यही समझा रही हूँ कि स्पीड अप करना पड़ेगा जब लंबे लंबे